Hello everyone. So as you can see on the screen, so the topic is related to projectile motion in details. Okay. So this is our fourth part of chapter 4th, physics, class 11th, motion in a plane. So let's understand this topic in detail. So this is Siddharth. Hello everyone once again. So here I am just going to start two topics: relative velocity and projectile motion in details. So I will explain each topic one by one. So as you can see, last video I just uploaded for these two topics, motion in a plane and motion in plane with constant acceleration. So today we are just having two topics in discussion: relative velocity in two dimension and projectile motion. The last video will be of uniform circular motion. That's it. Okay. So let's discuss relative velocity in two dimension, which is very important. Okay, so as you know, relative velocity concept is given by Einstein. Okay, so that is very important topic. So suppose that two objects A and B are moving with velocity v and vv, each with respect to some common frame of reference, say ground. Then the velocity of A relative to that of B is VAV equal to VA minus VV. Okay. Now similarly, the velocity of object B relative to A will be VVA minus VV minus VA. और इन दोनों इक्वेशन से तुम देख सकते हो कि VAV इक्वल टू माइनस VBA, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, जो दोनों का मॉडुलस है, दोनों का वो क्या है, इक्वल है. क्लियर? तो फिगर से तुम्हारा क्लियर होगा कि अगर मान लो दो कार है जो कि एक की वेलोसिटी क्या है VA और दूसरे की वेलोसिटी क्या है VB, तो एक दूसरे के रेफरेंस में तुम क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो. वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू B और वेलोसिटी ऑफ कार B विद रिस्पेक्ट टू A इज सेम. लेट मी रिपीट अगेन. So velocity of car A with respect to B and velocity of कार B with respect to A. Okay. So the best example is of train. Okay. इस फिगर में तुम देख सकते हो राइट साइड वाली टेक फिगर में. ओके. तो यहां तुम देख रहे हो कि ये जो पर्सन है ये 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कहां जा रहा है, ट्रेन के अंदर जा रहा है. ओके. और ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 9 मीटर पर सेकंड. और ये क्या है, बंदा ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है. क्लियर? यानी कि दोनों के लिए ये रेस्ट पर है, नो प्रॉब्लम. तो अगर मान लो तुम्हें उस पर्सन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वो होगा तुम्हारा क्या, पर्सन की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन जो कि कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, और ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि कितनी है 9 मीटर पर सेकंड. तो अगर तुम देखोगे पर्सन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो वो तुम्हारी क्या आनी चाहिए, 11 मीटर पर सेकंड आएगी. क्लियर? और भी हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे मान लो कोई दो ट्रेन, और शायद तुम रियल लाइफ में इसको एक्सपीरियंस भी कर चुके होगे कि अगर मान लो दो ट्रेन अगर जा रही हैं जिसकी इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर और इसकी भी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर. तो अगर तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारा फ्रेंड यहाँ खड़ा हुआ है, तो दोनों तुम क्या देखोगे कि तुम बोलोगे कि अच्छा इसकी भी ट्रेन रुकी हुई है, और ये बोलेगा कि अच्छा तेरी भी ट्रेन रुकी हुई है. क्यों? दोनों की स्पीड ये सेम है. जबकि अगर तीसरा बंदा जो ग्राउंड पे खड़ा होगा तो वो कहेगा कि अच्छा ये भी 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये भी 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है. बट speed of this train, or you can say velocity of this train with respect to with respect to this will be 0, or velocity of this train with respect to this again will be 0. क्यों? Both are moving in with the same velocity. So I hope relativity or relative velocity in two dimension is clear now. Okay. Now I am going to discuss projectile motion, which is very important topic. So student, you know what is projectile. So when a body which is in flight through the atmosphere that is not being propelled by any fuel, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे. और इससे हमने पहले वाली वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन हमने डिस्कस किया था, which is a kind of motion in two dimension. Okay, और motion in a plane. Other example you can see bomb released from an aeroplane in level flight, bullet fired from gun and arrow released from bow. Okay, bow. So ये सारे एग्जांपल्स किसके, प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं. क्लियर? तो ये तुम्हारा क्या है, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन है इस फिगर में. तो तुम क्या कर रहे हो, इसको तुम वेलोसिटी v से क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, और ये ऐसे जाके यहां आके रुक जाएगा. क्लियर? तो
अपने बचपन में तुमने बहुत क्या करा होगा, स्टोन फेंका होगा किसी न किसी पर, ठीक है, तो वो जो मोशन है वो किसका मोशन होगा, अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल होगा। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है, जिसको कि तुमको माइंड में रखने पड़ेंगे और उसके हिसाब से तुम जब डेरिवेशन करोगे तो चीजें क्लियर होंगी। क्लियर। तो पहला अजम्पशन क्या है, रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर। तो पहला अजम्पशन क्या है कि रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल, और क्या कहते हैं लो और नहीं होना चाहिए। यू विल नॉट कंसीडर एयर रेजिस्टेंस। ओके, देन ओनली यू कैन सॉल्व प्रोजेक्टाइल मोशन विद सिंपल डेरिवेशंस। ओके, सो पहला वाला क्या हमने डिस्कस किया, रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, दैट शुड बी नेग्लिजिबल। इफेक्ट ड्यू टू अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, कि अर्थ जो रोटेट कर रही है, ठीक है, उसका जो इफेक्ट होना चाहिए वो भी नेग्लिजिबल होना चाहिए। क्लियर, वो भी नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो मैं इसको भी टिक कर देता हूं। क्लियर, मैंने डिस्कस कर लिया। अब ये इंपॉर्टेंट है कि फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑफ द ट्रांजेक्टरी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये याद रखना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर जो ग्रेविटी तुम जी ले रहे हो तो यहां पर जब ये ऊपर से जब नीचे आ रहा है तब ग्रेविटी चेंज हो जाए। नो, थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शुड बी सेम, should be constant. Now let's discuss the principles of physical independence of motion, which is very important. क्या है ये? देखो, जब भी हम टू डायमेंशन मोशंस की बात करेंगे तो हमारे पास दो मोशंस पिक्चर में होंगे। पहला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, और दूसरा क्या होगा, वर्टिकल मोशन होगा। So these two motion takes place independent of each other. So in one aspect you will solve horizontal motion part, and in another case you will solve vertical motion part. Okay, और दोनों ही इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे को में क्या करेंगे, रिलेट नहीं होंगे। इंडिपेंडेंट तुम उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों बोथ दीज टू मोशंस टेक प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्लियर। सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैन बी रिजॉल्व इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये भी हम जानते हैं, हमने वेक्टर का रिजोल्यूशन किया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो अगर मान लो ये वेलोसिटी है, मैं पिछले वाले एग्जांपल में देखता हूं, तो ये मान लो अगर वेलोसिटी है u, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा u cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा u sin थीटा। क्लियर। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। थर्ड क्या है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द फ्लाइट एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंटिन्यूअसली अफेक्ट द वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये भी चीज याद रखने की है, क्योंकि यही तुम्हारे डेरिवेशन में हेल्प करेगी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली देयर इज नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वो ऊपर है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट में काम मतलब एक्ट करता है। तो अगर ऊपर जाते हैं तो हम माइनस जी लेते हैं, और नीचे जाते हैं तो हम प्लस जी लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो तुम्हारा थ्रू आउट द फ्लाइट रिमेन्स अनचेंज रहेगा। सो दैट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा, सेम रहेगा थ्रू आउट द मोशन। इधर चाहे इधर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी सेम। बट वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, टाइम के साथ, पोजीशन के साथ वो क्या होगा, हर पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट में क्या एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर वो ऊपर जाएगा तो रिटार्डेशन पिक्चर में आएगा, और जब वो यानी कि वो उसको अपोज करेगा, और अगर मान लो ऊपर से नीचे आता है तो वो एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, तो वो उसको सपोर्ट करेगा। तो ये है, ये चीज है, अगर याद रखोगे। अगेन डेरिवेशन शुड बी क्लियर टू यू। क्लियर। अब डिस्कस करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दिस इज वन टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, ओब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और हम इसी को ही कंसीडर करेंगे अपने डेरिवेशंस में, और हम इसी का ही डिस्कशन करेंगे क्लास 11th में। अदर टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ये भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, कि ये कोई प्लेन है और यहां से तुम क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, जो कि प्लेन ऑलरेडी क्या है, थीटा एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड है। दूसरे टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, कि ये ऊपर से क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है, तो ये तुम्हारा ऐसे आएगा। क्लियर। लेकिन हम कंसीडर कौन सा करेंगे, ओब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल कंसीडर करेंगे।
क्लियर? चलो अब डिस्कस करते हैं इसकी फ्यू मतलब 4 चीज हम डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी मैं एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कशन करना है हमको। टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्कस करना है, हमें मैक्सिमम हाइट डिस्कस करनी है और हमें हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्कशन करना है। क्लियर? तो हमको ये 4 चीज अगर क्लियर हो गई किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो यू कैन सोल्व एनी न्यूमेरिकल रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल। कौन कौन सी चीज है? इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। क्लियर? 4 चीज के डेरिवेशन आने चाहिए, इन 4 चीज के फॉर्मूला तुम्हें क्लियर होने चाहिए और इंप्लीमेंट करना आना चाहिए इन चारों चीजों को। क्लियर? चलो लेट्स डिस्कस इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी। सो द ट्रांजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। पैराबोलिक क्या होता है? ये एक जैसे तुम्हारा सर्किल होता है, ठीक है। मान लो एक इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। ऐसी एक और शेप आती है किसकी, पैराबोला की, जो कि होती है कुछ ऐसी, ठीक है। ऐसी या ऐसी या ऐसी या ऐसी, वो डिपेंड करेगा तुम्हारी एक्सिस पर। तुम्हें बस फिगर क्लियर होनी चाहिए और इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए। सो अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद वेलोसिटी v at an angle theta with the horizontal, so the velocity v can be resolved into 2 rectangular component। कौन कौन से कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? u cos थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? u sin थीटा। क्लियर? ये वेलोसिटी के तुम्हारे 2 कंपोनेंट होंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कहां पर? यहां पर इस सेकंड पॉइंट में इधर, ठीक है। ओके, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे? देखो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए देखो फिगर है यहाँ पे, हाँ है। क्लियर? तो जब ये यहां से कहां जा रहा है? यहां जा रहा है। क्लियर? तो हम इसमें फॉर्मूला यहां पर वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? u cos थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? u sin थीटा। क्लियर? ये दोनों कंपोनेंट तुमको पता है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो ax होगा वो क्या होगा तुम्हारा? 0 होगा। जो तुम्हारा ux होगा वो क्या होगा तुम्हारा? u cos थीटा होगा। क्लियर? तो यहां पर फॉर्मूला पुट करेंगे कौन सा? s इक्वल टू सेकेंड फॉर्मूला मोशन का ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर? तो s कितना है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? x मान लेते हैं यहाँ पे, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया उसने हॉरिजॉन्टली? x। u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। t और ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ax कितना है? 0। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया। u cos थीटा t प्लस 0। ठीक है? तो यहां से t की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ गई यहां से t की वैल्यू? x अपॉन u cos थीटा। क्लियर? तो ये t की वैल्यू आदि यहां पर नोट करेंगे पहली इक्वेशन। चलो वर्टिकल मोशन क्लियर करते हैं। तो वर्टिकल मोशन में a y जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा? माइनस जी होगा। u y जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा? u sin थीटा होगा। चलो पुट करते हैं। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में पुट करते हैं। तो गाइस s क्या है? s इज y इक्वल टू यू टी, u क्या है? u क्या है यहाँ पर? u y u साइन थीटा। और t की ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली। तो ये हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा। ठीक है? प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। टी क्या होगा तुम्हारा? एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो u से u गया तो ये तुम्हारा क्या आ गया? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन होती है किसकी होती है? पैराबोला की। पैराबोला, ठीक है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ट्रांजेक्टरी का जो पाथ होगा वो क्या होगा तुम्हारा? पैराबोलिक होगा। तो ये इक्वेशन, ये है तुम्हारी फाइनल इक्वेशन जो ये रिप्रेजेंट करती है कि जो ट्रांजेक्टरी की जो क्या होगा, ट्रांजेक्टरी की जो पाथ होगा, ठीक है,
ट्रांजेक्टरी जो होगी वो उसकी पैराबोलिक होगी, ये शो करेगा। ट्रांजेक्टरी में अपने आप ही पाथ पता चल रहा है, ठीक है, तो वो पैराबोलिक होगा। तो आई होप फर्स्ट वन इज क्लियर, इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी। सेकंड डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो स्टूडेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, देखो यहां से अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे तो सपोज ये है, तो यहां से ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, जिसकी ये डिस्टेंस जो होती है वो मैक्सिमम हाइट होती है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो यहां से जब मैं थ्रो करूंगा तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, उसको मैंने टी मान लिया। तो जितना टाइम यहां से यहां तक जाने में लग रहा है उतना ही यहां से यहां तक आने में लग रहा है टी। तो ये जो टोटल टाइम टी 2t जो होगा वो होगा तुम्हारा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको मैं 2t लिख देता हूं। अभी मेरे को 2 इंटू टी की वैल्यू निकालनी है यहां पे। अब देखो वर्टिकल अपवर्ड मोशन कंसिडर करते हैं। तो यहां से ए से पी तक गया, तो ए से तो यहां पर लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन u v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अच्छा u v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो ए से पी में फाइनल पॉइंट पी क्या है, पी, और यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, नहीं एक सेकेंड, इक्वल टू, हाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 इक्वल टू, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगी, u sin थीटा होगी। क्लियर, इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं इसको यहाँ पे u sin थीटा लिख लेता हूँ, यहाँ पे u cos थीटा लिख लेता हूँ। लेकिन u cos थीटा जो है तुम्हारी वो क्या है, हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो हम, और जबकि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, वर्टिकल। तो हम u cos थीटा नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, u sin थीटा लेंगे। क्लियर, इनिशियल वेलोसिटी। तो u sin थीटा माइनस ऊपर जा रहे हैं तो g यानी माइनस g और t। तो यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आ जाएगी निकल के, u sin थीटा अपॉन g, u sin थीटा अपॉन g। क्लियर, और वो 2t की वैल्यू हम क्या रख देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में लिख देंगे। तो ये आ गया तुम्हारा u sin थीटा अपॉन g, तो तुम्हारा t आ गया निकल के 2u sin थीटा अपॉन g। क्लियर, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा आ गया निकल के। अगर कोई डाउट हो you can comment in the comment section area, or otherwise there should be no doubt। क्लियर, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैक्सिमम हाइट। इट इज अ मैक्सिमम हाइट, तो ये जो है ये मैक्सिमम हाइट है। क्लियर, इट इज अ मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अ प्रोजेक्टाइल कैन रीच। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो जब यहां से O से लेके P तक जा रहे हो तो P पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि हम वर्टिकल वाला पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा तुम्हारा u sin थीटा होगा। तो u हो गया तुम्हारा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2g, और वो मैंने क्या ले ली, s डिस्टेंस वर्टिकल कैपिटल H। क्लियर, तो यहां से तुम h निकालोगे तो वो क्या आएगा तुम्हारा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आ गया तुम्हारा मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, अच्छा मैक्सिमम हाइट, अगर देखो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जो कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे होती है। तो अगर तुम h मैक्स निकालोगे तो वो h मैक्स क्या आएगा तुम्हारा, h मैक्स आएगा तुम्हारा u स्क्वायर अपॉन 2g। क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। तो वो भी किसके लिए होती है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए होती है। चलो हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्कस करते हैं। तो देखो ये जो डिस्टेंस, ये अगर यहां से लेके यहां तक गया तो ये जो डिस्टेंस है ये है तुम्हारी हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो पढ़ लो, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज को मैं r से रिप्रेजेंट करूंगा तो वो r इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, नॉट वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो क्या है तुम्हारी, u cos थीटा इंटू t, जितना टाइम लग रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, r इक्वल टू जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो स्पीड है, वेलोसिटी है u cos थीटा इनटू टाइम। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये r आ जाएगा तुम्हारा, अब देखो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, और u आएगा t की वैल्यू में 2u sin थीटा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये तुम्हारा आ गया क्या, रेंज। अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो थीटा
की जगह अगर तुम 90 माइनस थीटा पुट कर दोगे तो भी आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा, तो भी आर तुम्हारा सेम ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे तुम थीटा पे थ्रो करो, चाहे चाहे 90 माइनस थीटा पे करो, रेंज रिमेन सेम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम 30 डिग्री पे थ्रो कर रहे हो तो 30 के करस्पॉन्डिंग 90 माइनस 30 कितना होगा 60, तो 60 पर भी वो वही जाके गिरेगा। अगर मैं मान लो 45 की रेट, सॉरी 45 का तो 45 ही रहेगा, अगर मान लो मैंने 15 डिग्री लिया है तो 15 पर वही होगा जो 75 डिग्री पर होगा, दोनों पर रेंज क्या आएगी, सेम आएगी निकल के। और सब मैक्सिमम जो किस पर आएगी वो किस पर आएगी 45 पर, तो आर मैक्स जो आएगा वो किस पर आएगा 45 पर, क्योंकि 45 इंटू 2 90 और साइन 91 होता है, तो आर मैक्स तुम्हारा क्या आ जाएगा निकल कर यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये चीजें थोड़े से केसेस बन जाते हैं, तो वो चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आर हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या निकल के आ गया कि फॉर्मूला क्या है, दूसरा कि दो एंगल पर जो होगा वो रेंज रिमेन्स अनचेंज रहेगा, और तीसरा क्या है, जो मैक्सिमम आएगा वो आएगा तुम्हारा 45 डिग्री पर। तो अगर तुम्हें थ्रो करना है और तुम चाहते हो कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आए निकल के, तो तुमको 45 पे फेंकना पड़ेगा, 30 और 60 पे नहीं आएगा निकल के मैक्सिमम। क्लियर? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन एरिया में स्पेशली कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। अब सारे डेरिवेशंस क्लियर है या कोई डाउट है तो वो मुझे बताओ आप, ठीक है। तो मैंने ये प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने ये सारा डिस्कशन, क्या क्या हमने डिस्कशन कर लिया प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, हमने अजम्पशंस डिस्कस कर लिए, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन डिस्कस किया, हमने टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया, उसमें हमने ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल डिस्कस किया, और उस ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल में हमने क्या डिस्कस किया, इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट। अब इसके न्यूमेरिकल जो है, पहले तो मैं एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लूंगा, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हो सकता है कि मैं इसका खाली न्यूमेरिकल्स का एक अलग वीडियो बना दूं, किसका, प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, ताकि तुम लोगों को ये फॉर्मूला का यूज करना आ जाए। क्लियर? प्रोजेक्टाइल मोशन में। सो हेलो, सो गाइस, this is all about today's session. Okay, so thank you, and please have to subscribe and share if you like it. Thanks a lot, because it will, it will make me improve all the things. So this is very important for me, guys. Okay, so next video जो मैं लाऊंगा वो लाऊंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जो कि लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर 4 का। सो देखते हैं नेक्स्ट कब आता है वीडियो, कोशिश करूंगा जल्दी आए, ठीक है। थैंक यू गाइस।